हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मंगेश। आई रिसेंटली हैव कंप्लीटेड माय 1 ईयर एट इन्फोसिस एज अ सिस्टम इंजीनियर। सो इस वीडियो में मैं अपने 1 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। मैं 1 साल में क्या क्या चीज़ें इन्फोसिस की तरफ से सीखा हूँ एज अ सिस्टम इंजीनियर, दैट आई एम गोइंग टू शेयर हियर। सो this video will be helpful for those who wish to join Infosys or for those who has recently joined the Infosys। तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो है। तो आप पूरी वीडियो देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपको इस चैनल पे इन्फोसिस की हर एक जानकारी मिलेगी। So my I will be uploading regularly videos on the channel, so please subscribe the channel. Actually, when I passed out for in 2020, that time recession comes. So I thought I am a mechanical engineer. I have completed engineering in mechanical. So how will be my career in future? So I am worried about my career. Then I thought let's try something different. Then I start preparing. Start learning that new technologies, IT technologies, because that time every sector was in decline state, but IT was the one of the state who was really trending technology, a trending industry. It is giving jobs for lakhs of students. So I thought it is very good platform or good sector to start my career. So I'm very blessed that Infosys give me my career break as a system engineer. Uh, Actually, to get select in Infosys, I just did basic of C, C++, Java, and Python. Basics only. I am talking about core Java, core Python, not talking about advanced things. Okay. So on that basis, I tried at Infosys. I had given that exam and I got passed. In interview, in interviews at starting itself, I told them that I am not that much aware of this programming languages, but yeah, I know basic of this. But I gave them confidence that I gave them belief that I will definitely learn this technology and I will prepare very well. I show them the knowledge I have. So like that, guys, they will ask you very basic things if you want entry level exam, because they don't want very expert, because you are a fresher. If you look at the syllabus of computer or CS background student also, the Java the complete Java Python, they syllabus also will not cover that things, don't cover that things. So why you are worrying, guys? The basic is okay, but the thing is you should have that ability to learn the things that you have to show there at in interview. तो गाइज वो चीज़ें आपको इंटरव्यू में शो करनी होती है, कॉन्फिडेंस दिखना है भाई। जो मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी होगी जिन्होंने, उस उनमें वो सर्किट एक चीज़ बोलता है कि भाई इंटरव्यू में जाने का तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाने का और विनम्र के साथ बात करने का। तो भाई वो चीज वहां सच में काम करती है। एटलीस्ट मेरे केस में तो वो काम कर गई यार। क्योंकि मुझे कुछ इतना अच्छा नॉलेज नहीं था जब, क्योंकि यार हम मैकेनिकल से तो इतना टाइम हमको मिलता भी नहीं, और क्या ही टाइम निकालेंगे। तो यार मैंने एट द लास्ट मोमेंट पे कुछ बेसिक वेसिक किया था और उसके भरोसे में मुझे जॉब मिला इन्फोसिस में। थैंक्स फॉर इन्फोसिस फॉर हैविंग मी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। बट गाइज मैं इन्फोसिस के बारे में बोलना चाहूंगा यार, बहुत अच्छा, मतलब यू कैनॉट कंपेयर द वर्क एनवायरमेंट एट इन्फोसिस विथ एनी अदर आईटी कंपनीज, आई थिंक। Guys, the work environment, the manager, very friendly manager you will get at Infosys. They will help you in any situation. So trust me, guys, if you are a fresher and if you want to start your career, then Infosys is the best option to start your career. And guys, the good thing is Infosys hires at bulk. So if you have basic knowledge, if you are
awares of how the coding will be, how the question the Infosys will ask, then guys you can definitely crack the exam and you can definitely shape your career very well. सो गाइज कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ इन्फोसिस के बारे में। यार मुझे मतलब काफ़ी टाइम लगा कुछ चीज़ें जानने के लिए, लेकिन गाइज इफ़ यू नो दिस थिंग्स अर्ली मोमेंट एट दिस मोमेंट देन इट विल बी डेफिनेटली गुड फॉर यू। सो गाइज जैसे कि हम सैलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अगर आप अच्छी सैलरी पाते हो तब भी आप सेटिस्फाइड हो, ऐसा मेरा मानना है यार। कि कुछ लोग बोलते हैं यार मटेरियल थिंग्स, लेकिन मेरा एक मानना है यार सैलरी मैटर्स। सो अगर आपको सैलरी ग्रोथ करनी है तो कुछ चीज़ें होगी जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। वैसे इन्फोसिस में कुछ बातें हैं जो कि अगर आपको पता हो तो आपकी सैलरी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिख लो भाई, पावर प्रोग्रामिंग ब्रिज कोर्स। ब्रिज एक मतलब एग्जाम रहती है पावर प्रोग्रामिंग की, जो साल में मेरे ख्याल से 2 बार इन्फोसिस कंडक्ट करता है। अगर उस एग्जाम की आपने प्रिपरेशन की, अगर वो एग्जाम आपने पास की, तो भाई आपको अच्छा डेजिग्नेशन मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, यू कैन डिमांड, दैट इज द थिंग। एंड सो पहला पॉइंट तो आप लोगों को नोट डाउन करना है, ब्रिज प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपको सॉल्यूशन देना होगा कैसे भी करके। तो उसको आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। ये चीज़ मतलब ये हैक्स है आपके लिए। अगर इस चीज़ पे आपने काम किया तो गाइस डेफिनेटली विल गेट योर डिजायर्ड सैलरी दैट यू वांट एंड यू विल गेट प्रमोटेड फास्टर कंपेयर टू अदर्स। और दूसरी चीज है भाई लेक्स कोर्स। लेक्स प्लेटफॉर्म होता है इन्फोसिस का, जैसा कि यूडेमी वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम कुछ टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, वैसे इन्फोसिस का खुद का लेक्स का प्लेटफॉर्म है। गाइस ट्रस्ट मी, द लेक्स प्लेटफॉर्म इज डिजाइन्ड बाय वेल प्रोफेशनल पीपल। Trust me, such a platform you will not get after that. So up to till date you are in Infosys, please utilize that platform. This is very good point, I am telling you. Complete the courses as much as you can, because you will never get that chance if once you get out of Infosys, that access you will not get. So learn as much as courses from that. In Lex they have courses from C to artificial intelligence, data science. You'll get course on every technology, and that course is designed very well, guys. It will be understood by every person. If you know nothing about programming, if you start that course, you will get everything, guys. This is the beauty of Infosys. That is why Infosys is a brand. ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो कि मुझे इन्फोसिस के बारे में बताने थी। और कुछ चीजें और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा इन्फोसिस ट्रेनिंग के बारे में कि इन्फोसिस, अरे यार सच में बोलूं तो मैं इस मामले में काफी खुद को कोसता हूँ यार। कोविड की वजह से यार मेरा मैसूर का ट्रेनिंग मिस हो गया, वरना यार बहुत सारे सपने थे मैसूर के बारे में। मैसूर कैंपस शिट, आई मिस्ड इट। ओके बट व्हाट वी कैन डू यार, कोविड में इतने लोगों की जान गई है तो मतलब सपना था, शायद वो हमें चांस देंगे यार। इन्फोसिस ने बुलाना चाहिए मैसूर कैंपस में 4-5 दिन का, तो भी कुछ अरेंज करना चाहिए। बट ये कुछ दूसरा टॉपिक हो गया, टॉपिक से भटकना नहीं चाहते। तो गाइस ट्रेनिंग का ऐसा है कि ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जेनरिक ट्रेनिंग एंड स्ट्रीम ट्रेनिंग। सो जेनरिक ट्रेनिंग में 2 चीजें होगी, 2-3 चीजें बोल सकते हो। एक होगा जावा, कोर जावा, दूसरा पढ़ाएंगे वो डेटा स्ट्रक्चर, और तीसरा पढ़ेंगे एसक्यूएल के बारे में, MySQL वगैरह वो पढ़ाएंगे। सो गाइज वेरी ट्रेनिंग में कुछ टेंशन मत लीजिए, हर एक भाई ट्रेनिंग में पास होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है और मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें।
जो कि मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। एक वीडियो में यार हर हर चीज़ अगर एक्सपोज करे तो कैसा होगा। तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। और उसके बाद में स्ट्रीम ट्रेनिंग में होती है, जेनरिक ट्रेनिंग के बाद स्ट्रीम ट्रेनिंग में आपको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग देंगे। उस ट्रेनिंग देके ट्रेनिंग बहुत इजी होगी भाई। और हर एक एग्जाम में पास करने के लिए आपको मिनिमम 65% का क्राइटेरिया है, जो कि मेरा हर एक भाई इजीली क्रैक करेगा वो चीज़। मतलब यार वो मिनिमम 65, मुझे लगता है आप लोग को लगेगा 65 बहुत बड़ा है। ट्रस्ट में गाइज, 65 इज नथिंग। इफ यू नो एनीथिंग स्टिल यू विल get that 65, trust me. But the thing is you have to learn, you have to understood what that educator teach you in training. And trust me guys, you need not to do anything. This educator will do everything for you. If you just attend that courses also, then also you can score more than 65. This is the beauty of the training. If you search about Infosys training, then you will get to know that what level of training that Infosys is providing. Okay guys, so this is it from my side. That is the things I wanted to share here. I'll be uploading the videos in future, so stay connected, stay happy and stay blessed. Thank you guys.